Hello, everyone. Today's topic is a bit offbeat untying love. That means you are in love, but you are not in any kind of foundations. So, I have been contemplating on this topic for quite a long time, and so I decided to make a video and share my thoughts with you. So, untying love. First thing is, let's understand what is love. प्यार क्या है? Love is, in all ages, it changes its expression, but the essence of love remains the same. For example, when you are a teenager, you like someone. So maybe you will do certain things to impress the person you love. And yes, love is a very beautiful feeling. Love is caring. Love is sharing. You want to do certain things when you are in love. This type of love which I'm talking about is I'm talking about a relationship with between a partner or with a partner. It can be a husband wife. ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, बट इन अ जेनेरिक वे आई एम कवरिंग माई फोकस इज ऑन द कपल. तो जो जो लव है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक बॉन्ड है. दैट्स अ बॉन्ड. और उस बॉन्ड में जो एक अदर पर्सन का हमारे अंदर एक निरंतर एक याद चलती है. उस बॉन्ड के अंदर हमारी केयर चलती है कि हाउ द अदर पर्सन इज फीलिंग एंड व्हाट कैन आई डू टू मेक दैट अदर पर्सन फील बेटर. ये है प्यार. यस, बहुत सारी जगह पे आपका और मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है. पर मैं यहाँ पे मैंने कोई गूगल नहीं किया, मैंने कोई एआई यूज नहीं किया. मैं अपने अंदर की जो चीजें मेरे अंदर जो चलती है या जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं, मैं उन बेसिस पे शेयर कर रही हूँ. सो दैट जो हमारे अंदर एक केयर और कंसर्न चल रहा है हमारे पार्टनर के लिए, और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, और उस प्यार में हम अपनी आइडेंटिटी इंडिविजुअलिटी को कैसे एक दूसरे के साथ स्पेस देते हुए रिस्पेक्ट करते हुए ग्रो कर सकते हैं. So this is a general observation. It is not like the entire thing is mine or I've experienced everything, but what I feel about love, what love is. So again, we come back to the topic. जैसे कि when you come to know that your dearest one is little upset, not being very good in the workplace, या आज कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स पे बहुत अच्छा नहीं रहा. So what will be your initial first reaction? How I can make up a day? What can I do for her? And if you are a couple, especially with men, and like after a very long marriage, generally wives क्या करते हैं कि let me cook something special for my husband. It will make him feel better. तो जो हमारा Indian culture है, that's very beautiful. That makes the other person feel better by cooking something for them, by doing something special for them. आजकल का जो टाइम है स्विगी जोमेटो का, it's a quick fix. That's for sure. But when we do something with our own hands, when we do something, when we put that extra effort, no one can beat that. So, this is what I feel. So, untying love, doing certain things together. When you are in love, you're because you have that bond, you enjoy many things doing together. आप लोगों को बहुत मजा आता है. Hiking, trekking, spending time in nature, driving, cooking together, arranging the house together, going for shopping together, and buying certain things which both of them are involved, taking care of pets. बहुत सारे अलग अलग इक्वेशंस होते हैं हमारे. तो फॉर सम कुछ सूट करेगा, कुछ जनरेशन के लिए कुछ सूट करेगा. तो बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम बहुत सारी शेयरिंग करते हैं. समवन इफ दे आर अ बुक लवर,
They can have a conversation over a book, intellectual talks, talks about spirituality, philosophy, life, death, celebration, loneliness, being alone. So many things to be talked, spoken, understood about. तो जब हमारा एक किसी के साथ, मैं लव नहीं कहूंगी, आई थिंक दिस इज हायर अ बॉन्ड, व्हेन आई शेयर अ बॉन्ड विद somebody, we share so many things together. We share our time together. We plan where we can spend time together, how we can spend time together. So, this is what love is. Love is not about only buying flowers and sending gifts and doing a seldom call. Love is spending time. Love is taking care of. Love is to be taken care of. Love is about being consciousness, and love makes you grow. It can never happen that you are in love and you feel that you are stuck, you are stagnant. अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ग्रो नहीं कर रहे, आप एक जगह पे फंस चुके हो, तो वहां पे अगर आपकी ग्रोथ नहीं है, तो बिलीव मी, दैट्स नॉट लव. If you love somebody and you are being told all the time what you have to do and what you don't have to do, आप किसी से प्यार कर रहे हो और आपको हर वक्त ये बताया जा रहा है आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, और जस्ट बिकॉज आप लव में हो, आप उन चीजों को होल हार्टेडली फॉलो कर रहे हो, तो बिलीव मी, वो लव नहीं है, वो अटैचमेंट है. क्योंकि लव ऐसा नहीं हो सकता. लव में तो दोनों ग्रो करते हैं, दोनों खुश रहते हैं, दोनों अच्छे से ग्रो करते हैं. अगर ये सोचे कि मेरा पार्टनर तो इमेच्योर है, उसे तो पता ही नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा, नहीं. आप उनको ऐसे नर्चर करते हो कि वो आपके लेवल पे ग्रो करे. वो आप जैसे नहीं होंगे बट इंडिपेंडेंट होंगे. सो लव मेक्स यू इंडिपेंडेंट. जब आप दोनों साथ में हैं, आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, और आप, मैंने जैसे बताया, हम बहुत सारी एक्टिविटीज में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं. पर जब आप अपनी अपनी फील्ड में हैं, जब आप अपने प्रोफेशन में हैं, या जब आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं, वो कुछ किसी भी कारण हो सकता है, मे बी हम डिफरेंट सिटीज में हैं, मे बी हमारी जॉब प्रोफाइल्स डिफरेंट हैं, या हम साथ नहीं रहते, या हम अपना कोई कोर्स के लिए कुछ लर्निंग के लिए हम अलग रह रहे हैं. तो जब आप अलग हो, तब आप इंडिविजुअली, आर यू इंडिपेंडेंट और यू जस्ट हैव टू आस्क एवरीथिंग, ये करूं कि नहीं करूं, ये सही है या गलत है, आर यू एबल टू हैव एन ओपिनियन. हाँ, ओपिनियन के बाद हम कंसल्ट करते हैं कि ये ओपिनियन आई फील ये करना चाहिए, और उसके बाद हम प्रोज और कॉन्स उनके वे करते हैं. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट डू यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन? कैन यू थिंक इंडिपेंडेंटली? Can you do things independently? That's love. And that is what untying love is all about. आज का यही टॉपिक है, untying love. हमें तो ये पता है कि हम प्यार में कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, हमने बहुत मूवीज देखी हैं, बहुत अच्छा रहता है. बट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी नहीं है. या फिर मानो आप कोई रिलेशनशिप में हो और 5-6 साल बाद आपको फील हो रहा है कि बहुत टाइम हमने एक साथ स्पेंड कर लिया, अब हमने बहुत सारी चीजें एक साथ कर ली, नाउ इट्स टाइम टू learn our own ways. Maybe your partner is very interested in some activities which now your call is different. तो उसमें अगर आपकी कॉल अब आया कि आपको योगा रिट्रीट में जाना है, बट द पार्टनर इज नॉट कीन ऑन दैट, दैट्स ओके. यहीं से हमारा टॉपिक की शुरुआत है कि एक टाइम आता है कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं, हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं. बट कुछ सालों बाद जब हमारे अंदर एक गैप आता है कि हमारा टाइम टू टाइम हमारी कॉलिंग डिफरेंट होती है, हमारे अंदर एक रहता है कि अब मुझे ये सीखना है. स्पेशली जैसे हम हीलिंग में जाते हैं, हम योगा में जाते हैं, तो हमारी एक हायर कॉल होती है, कॉन्शियसनेस से हम जुड़ते हैं, हमें क्या करना है, हमें आगे कैसे लीड करना है लाइफ को. और ये सिर्फ बिजनेस और पैसे ओरिएंटेड नहीं है.
हम चाहते क्या है, हमारी इनर कॉल क्या है, जब हम उस दिशा में जाते हैं तो एक गैप आता है। और उस गैप में हमें, अगर आपका कल को अगर आपके पार्टनर कहते हैं कि सी आई फील दैट आई वांट टू गो फॉर अ 6 months कोर्स फॉर योगा एंड I want to be disconnected from all of these things. I will be calling you seldomly, but then I want to do this. What will be your call? Oh my God, कैसे होगा? मैं कैसे करूंगी? मुझे क्या करना चाहिए? uh, देखिए, देर विल बी पेन, देर विल बी अ मिसिंग फैक्टर, इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी होंगे, क्योंकि हम रेडी भी नहीं है या हमें अच्छा नहीं लग रहा वो सोच के। बट जब हमारे पार्टनर की कोई कॉल है तो हमें उसकी इक्वली रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देनी है। रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि वो एक इंडिविजुअल सोल है, और जब वो सोल कुछ अपने लिए चाहती है या सोचती है तो हमारा एक दायित्व बनता है, एक एज एन इंडिविजुअल सोल, दैट इट्स नॉट अबाउट अलाउइंग, इट्स अबाउट गिविंग स्पेस। आप अलाउ नहीं करते हो किसी को, ये गलत शब्द है। एक स्पेस देते हो किसी को, ठीक है आपकी ये कॉल है, आप इसको जरूर फॉलो करिए। और जो ट्रॉमा है या जो आप फील कर रहे हो वो आपका इंडिविजुअल जरूर है, बट वो आपके इस ग्रोथ में ब्लॉकेज नहीं बनना चाहिए। और उस दौरान आप अपने अंदर महसूस करिए आप क्या चाहते हो, आपकी क्या कॉल है। और इंडिविजुअलिटी एक रिलेशनशिप में होना बहुत जरूरी है। एक आप एज एन इंडिविजुअल क्या चाहते हो, आपकी इंडिविजुअल लाइफ क्या है। आप पूरा वेट अपने पार्टनर की लाइफ पे तो नहीं डाल रहे कि आपकी आइडेंटिटी आपके पार्टनर के साथ है, आपकी आइडेंटिटी ही आपके पार्टनर के होने से है। आपका जो टाइम है उस पार्टनर के आसपास ही जा रहा है, आपकी लाइफ की चॉइसेस सारे उस पार्टनर के इर्द गिर्द हैं। तो आप अपने अंदर ये कंटेम्पलेट करिए, यू एज एन इंडिविजुअल, वेयर आर यू, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट। दैट इज अनटाइड लव। बहुत अच्छा है कि आपकी लाइफ एक व्यक्ति के विशेष के आगे पीछे रिवॉल्व होती है, बट दैट इज बीइंग इन लव बट बीइंग अवे फ्रॉम लव। As an individual, start thinking what you want. It's not about I want to do outside things, it's about connecting to yourself. Maybe you're giving that extra time to yourself to make a better body, to have a better fitness, or to have a break from all the mental activities. हम बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करते हैं। तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो? दैट इज अनटाइड लव। और जब आपको ये ब्रेक मिलता है, उस दौरान जर्नलिंग करिए कि आपने क्या फील किया, हाउ मच थिंग्स वर यू एबल टू डू बेटर, हाउ पॉजिटिव वर यू हैप्पी। और अगर आप खुश भी हो तो उसमें हमें गिल्टी नहीं फील करना है, ओ आई एम अनहैप्पी विदाउट माई, आई एम हैप्पी विदाउट माई पार्टनर, आई शुड नॉट फील लाइक दिस। नहीं नहीं, आपको हर एक सोल जो इस धरती पे आई है उसे खुश रहने का एक वो है, हक है। उसे अपने जीवन जीने का हक है, उसे अपनी चॉइसेस करने का हक है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इस टॉपिक को थोड़ा छोटा कर दिया, जैसे मैंने इसे कपल गोल्स बना दिए, बट अगर यही टॉपिक अगर हम एज अ मदर और चाइल्ड लेते हैं, एज अ फादर एंड सन लेते हैं, दो फ्रेंड्स के बीच में लेते हैं, दो ब्रदर्स के बीच में, दो सिस्टर्स के बीच में, so we should respect each other's boundaries, each other's choices, and give space in each relationship. Give respect to their decisions. We should not wait कि हाँ गलत होगा तो मैं बोल दूंगी, देखा और करो, ये सब समझ में आ रहा है। नहीं, मे बी देर इज अ रॉन्ग चॉइस, बट रिस्पेक्ट, क्योंकि वो उस समय की उनकी कॉल वही थी। तो हमें ये लर्न करना है एज एन इंडिविजुअल कि हम हर रिश्ते में एक ग्रोथ के लिए जगह छोड़े, स्पेस दे, और एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बने। उन पे लदे नहीं, या हमने अपना सपोर्ट सिस्टम उनमें नहीं खोजना है कि उनके बिना मेरी सांस नहीं आएगी। नहीं, गॉड ने हमें इंडिविजुअल बनाया है। अगर इतना ही अगर हमारा डिपेंडेंट सिस्टम होता तो शायद हम कंजॉइंट ट्विंस की तरह पैदा होते। या कंजॉइंट ट्विंस मीन्स जो बच्चे
जिनका जिस्म एक जन्म के समय पे जुड़ा होता है, बहुत बार दो दिल होते हैं और शरीर जुड़ा हुआ है आधा, या फिर दिमाग से जुड़ा हुआ है, या दिल एक ही है और बॉडी जॉइंट अलग अलग है, मतलब बॉडी जॉइंट है और वो अलग भी नहीं हो सकती। तो अगर हमें डिपेंडेंट ईश्वर ने बनाना होता ना, तो शायद हमें वो साइमीज ट्विंस या कंजॉइंट ट्विंस की तरह बनाते। पर ईश्वर ने हमें ऐसे नहीं बनाया, उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट बनाया है। इंडिपेंडेंट सोल है हम। और ये सोल जब वो मिलजुल के सबके साथ सिंक्रोनाइजेशन में, हार्मनी में रहती है, सबसे ज्यादा खुशी मिलती है उसे। सिंक्रोनाइजेशन विद आत्मा, सिंक्रोनाइजेशन विद द नेचर आउटसाइड, सिंक्रोनाइजेशन विद आवर सेल्फ। और जब ये कलेक्टिव होती है, जब ये लोगों से इंटरेक्शन करती है, जब ये लोगों से मिलती है, उनके साथ जॉय क्रिएट होता है, उनके साथ हंसी मजाक होता है, तब ये जो जॉय है ना, ये सोल का इंडिपेंडेंट मतलब ये पर्पस है। हम एक साथ मिलते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, फिर अपनी यात्रा में चलते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, that we all are souls and we all have to grow independently and be together to support each other, to help each other, but not by blocking their choices and decisions, but by giving positive inputs and helping them to। अगर मान लीजिए आपके कोई साथ में है जिन्होंने कुछ गलत चॉइसेस कर ली, गलत डिसीजंस ले लिए, या वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहा, इट्स ओके, वी ऑल लर्न, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। But that is what our role is, that help them stand, help them analyze what is right and wrong, good and bad। और अंदर से तो हम सब जानते ही है। एंड विद इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग एंड स्टॉपिंग, सपोर्टिंग देम की बाईपास बना लेते हैं। जैसे एक पानी है, छोटी सी एक स्ट्रीम होगी, स्पेशली जब आप खेतों की पगडंडियों में देखेंगे कि छोटी सी धारा है, वहां पे बीच में पत्थर होगा, तो वो धारा साइड से निकल जा रही है। तो हमने जीवन भी तो ऐसे बना लिया। अगर हमारा मेन स्ट्रीम जीवन अलग है, तो हमने कोई चॉइसेस हमारी गलत हो भी गई, जीवन तो चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। तो उसे बाईपास करते हुए हमें बनाना है। तो नेवर स्टॉप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप सपोर्टिंग एंड नेवर doubt your individuality। I am nothing, I don't know, I can't manage, I won't be able to do। Be confident, have faith in God, have faith in yourself। You are God's child and you will be able to do it। And everything happens for a reason, everything happens for good। हमें तुरंत शायद कुछ चीजें अच्छी ना लगे हमारे, क्योंकि मन के हिसाब से नहीं हो रही, पर आफ्टर सर्टेन टाइम वी विल रियलाइज कि वो जो हुआ था ना, बहुत अच्छा हुआ, या आज मुझे समझ में आ रहा है उसकी वजह से आज मेरे अंदर क्या चेंजेस आए। सो दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ में कुछ भी गलत और सही नहीं होता, बस हमें उतनी समझ नहीं होती। सो सम इंसिडेंट्स विच आर अकॉर्डिंग टू अस, या हमारे जब फेवर में होते तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, या हमारे फेवर में नहीं होते तो हम कहते हैं बहुत खराब हुआ। और हर चीज एक सिचुएशन है, वो आ रही है और वो जा रही है। सो टेक अ बैक सीट, रिलैक्स, बी हैप्पी एंड बी अ सपोर्टिव पार्टनर। Cooperate, be a system where blood is flowing and smoothly। So, I hope you like the video. Thank you so much.